we start our syllabus for 6th class. We teach you about with the help of projector. This is a new technology provided you by our school. Now we start our today's class. Our today's class is the Earth in our solar system. This is the diagram of Milky Way. In Hindi we called Milky Way the Akash Ganga. The solar system is also a part of our Milky Way, and there are about 500 Milky Ways in our universe. This is the diagram of Milky Way, and our solar system is also a part of Milky Way. Solar system means the sun and its family. Only 15% of stars host planet. मतलब कि जो अपने प्लैनेट है वो 15% जो स्टार्स है ना उनके बराबर है, उनको कंपेयर करते हैं. Now this is the diagram of sun. It is the head of our solar system, and this is a small part of our Milky Way. Our Milky Way is a very huge, and sun is a small part of this Milky Way. In our solar system there are 8 planets. Before 2006 there are 9 planets, but the 9th planet Pluto is a dwarf planet in 2006, and now there are 8 planets in our solar system. First, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. You see, Jupiter is the biggest planet of our solar system, and Mercury is the smallest planet of our solar system. Start. There are 2 categories of our planets. First category is terrestrial category, and second is Jovian category. 4 planets are in terrestrial category and 4 planets are in Jovian category. The terrestrial category is include Mercury, Venus, Earth and Mars. The features of these planets are first, made of rocky material. कि ये किससे बने हैं? ये चट्टानी टुकड़ों से बने हैं. Surfaces are solid, और इनका जो सरफेस है, इनका जो आवरण है वो कठोर है. Don't have rings, कि इनके चारों तरफ कोई रिंग्स नहीं है. आप देख रहे हो कि इन चारों प्लैनेट्स की जो सरफेस है वो बहुत ही टाइट है, क्योंकि आप अपनी अर्थ के ऊपर देखते हो जो माउंटेन्स हैं, जो प्लेट्यूज है वो क्या है? रॉकी मटेरियल है. और जो अपना अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो बहुत ही हार्ड है, और अपनी अर्थ के चारों तरफ कोई भी रिंग नहीं है. वेरी फ्यू मून्स, कि इनके जो सैटेलाइट्स हैं, इनके जो चंद्रमा है, क्योंकि आपने देखा है कि अपनी पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? सिर्फ वन मून है. रिलेटिवली स्मॉल, और ये जो 4 है ये चारों के चारों छोटे हैं, और जो जोवियन में आते हैं वो चारों के चारों जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े प्लैनेट हैं. This is the second category of planets, Jovian planets. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These 4 are Jovian planets. In Jovian planets there are also 2 categories. 2 planets, Jupiter and Saturn, are gas giants, and Uranus and Neptune are ice giants. Now you see the diagram of Jupiter, Saturn gas giant and Uranus, Neptune ice giant. मतलब ये क्या है? ये तो गैस के बहुत बड़े गोले हैं. आप देख रहे हो इनके चारों तरफ रिंग्स भी हैं. जो सैटर्न है उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर जो रिंग्स होते हैं, और जुपिटर कितना बड़ा, जो अपने सोलर प्लैनेट का जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट है. और जो यूरेनस और नेपच्यून है वो बर्फ के बहुत बड़े गोले हैं. दिस इज गैस giant. The features of gas giant planets predominantly helium and hydrogen, की इन दोनों के अंदर अधिकता किन गैसेस की होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की. ये जो दोनों प्लैनेट्स बने हुए हैं ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम के ही बने हुए हैं.
These are ice gates and the feature of these planets contain rock, ice and mixture of water, methane and ammonia. कि ये जो आइस गेट्स हैं ये किन किन चीजों के बने हुए हैं? चट्टानों के, बर्फ के, और ये मिक्सचर है पानी के, मीथेन गैस के और अमोनिया गैस के. This diagram you can see that there are 9 planets and sun also. This is Mercury, Venus, this is our Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. Now we read about the satellite of our Earth, Moon. I explain Moon in a broad way. Now we read about Moon. The Moon is the only natural satellite that the Earth possesses. कि जो Moon है, जो चंद्रमा है, वो हमारी अर्थ का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है. It is only about 1/4 of the size of the Earth and its gravity is approximately 1/6 of that of the Earth. कि जो अपना Moon है उसका साइज हमारे अर्थ से कितना है? 1/4 है. और जो इसका ग्रेविटी है, गुरुत्व आकर्षण बल है, अपनी तरफ खींचने वाली जो शक्ति है वो कितनी है? 1/6 है. ओके. द मून टेक्स अबाउट 28 days to revolve around the earth. कि जो अपना मून है वो The moon takes about 28 days to revolve around the earth. कि जो मून है वो 28 डेज लेता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में. जैसे अपने प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही जो मून्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं, वो भी अपना जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो मून कितना टाइम लेता है? 28 डेज लेता है. इट ऑल्सो टेक्स ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और एक वो अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगा रहा है, तो वो सेम टाइम लेता है. 28 डेज ही लेता है वो अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाने के लिए. दिस इज द रीजन व्हाई वी ओनली गेट टू सी ओनली वन फेस ऑफ द मून. और यही कारण है, यही रीजन है कि हम मून का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं. The moon is located at a distance of about 3,84,400 km from the sun. कि जो अपना चंद्रमा है वो सूर्य से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर है. The absence of air and water makes the moon unsuitable. और जो पानी और हवा का जो एब्सेंस है मून के ऊपर, इसी के कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं है. द सरफेस ऑफ द मून इज फिल्ड विद क्रेटर्स ऑफ वेरिंग साइजेस बिकॉज ऑफ बीइंग बॉम्बर्ड बाय. कि जो अपना मून है वो किस चीजों से भरा हुआ है? मेटियोर्स एंड लैक ऑफ एयर एंड वाटर टू वियर दीज डाउन. कि इसके ऊपर है ना, जैसे कि अपना ये मून है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं. ठीक है, जैसे कि घाटियां होती हैं, ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो एयर है और ना ही यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं. अब है फेजेस ऑफ द मून, कि चंद्रमा की कलाएं. आप देखते हो कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता रहता है और चंद्रमा 15 दिन कम होता रहता है. तो जैसे चंद्रमा बढ़ता रहता है तो वो क्या करता है? जिस दिन वो चंद्रमा पूरा हो जाता है और पूरा चमकता है उस दिन होती है पूर्णिमा. और जिस दिन चंद्रमा कम हो के, क्या जैसे कि कल जो हमारी अमावस्या थी, तो वो रीजन है किसका? चंद्रमा की कलाओं का कम होना या चंद्रमा के साइज का कम होना. वी हैव रीड दैट द मून टेक्स 28 days to complete one revolution around the earth. कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो चंद्रमा है वो 28 डेज लेता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में. ड्यूरिंग दिस पीरियड, owing to the position of the moon
और इसी कारण से जो हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं वो साइज हमें कभी बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ दिखाई देता है। दिस इज टर्म्ड एज द फेजेस ऑफ द मून, और इसी को क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ दिस पीरियड द मून अपीयर्स टू ग्रो इन साइज, कि जो महीने का 28 डेज है उसमें से 14 डेज तो क्या करता है, चंद्रमा बढ़ता रहता है और 14 डेज कम होता रहता है। तो जब चंद्रमा बढ़ता है दिस इज रेफर्ड टू एज द वैक्सिंग पीरियड, इसको क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द मून श्रिंक्स इन साइज ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द पीरियड, और इसके हाफ में 14 दिन क्या होता है, चंद्रमा कम होता रहता है और उसको क्या कहते हैं, दिस फेज इज कॉल्ड वैनिंग पीरियड। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक आपका चंद्रमा का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये हाफ मून हो गया और उसके बाद ये फुल मून हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे वैक्सिंग। और उसके बाद ये हाफ मून हुआ और उसके बाद फिर ये चंद्रमा कम हो गया, तो इसको हम कहेंगे वैनिंग। I hope students you understand all these topics very well. Draw the diagram of solar system or phases of moon in your notebook. Thank you. Classes in this 6th class video. So student, I would like to tell you, in previous we have started already done for the preparation of competitive exams, but now we have started our syllabus due to the help of projector, so that you can understand very easily. So this is the first chapter, the Balloon Man. This is a poem. एक बैलून मैन के बारे में ये पोएम बताई गई है। So before we read this poem, let's just read the lines written by the poet. What is that? Let us see. हम देखते हैं, the balloon man is a very common sight in the markets, fairs and exhibitions. यानी कि एक बैलून मैन, फूके वाला, गुब्बारे वाला, जो कि एक आम तौर पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी जगहों पे, मार्केट्स में, फेयर्स यानी कि जहाँ पे मेले लगते हैं और जहाँ पे एग्जीबिशन होती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी गैदरिंग होती है पीपल की, फैमिली की, तो वहाँ पे आमतौर पे आप जो है बैलून मैन को आसानी से देख सकते हैं। He comes with bunch of balloons of different colors and sizes, और उसके पास गुब्बारों का गुच्छा होता है, बंच होता है, जिसमें कि आपको अलग अलग रंग के और साइज के बैलून देखने को मिलेंगे। The children gather around him and buy balloons, और जहाँ पे भी गुब्बारे वाले को बच्चे देखते हैं तो वो उसके आसपास घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और उनसे बैलून जो है खरीदते हैं। Sometimes a strong wind blows and it pulls the balloons, और क्या होता है, कभी कभी sometimes एक तेज हवा का झोंका आता है और बैलून्स को उड़ा के ले जाता है। So student, let us start. See the first paragraph. अब इसका पहला पैराग्राफ देखिए। He always comes on market days. बैलून वाला अक्सर आपको कब दिखाई देता है, जब भी कभी मार्केट यानी कि बाजार के समय में आपको बैलून वाला दिखाई देगा। And holds balloons a lovely bunch, और उसके हाथों में जो है बैलून का गुच्छा होता है जो कि बहुत ही सुंदर देखने को लगता है। And in the market square he stays, और आमतौर पे आपको बैलून वाला कहाँ खड़ा मिलेगा, मार्केट के चौराहे पे। Why he always used to stay at the market square? Because वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे चारों तरफ से लोग उसको देख सकते हैं और वो आसानी से अपने बैलून को सेल कर सकता है। That is the reason he always stay at the market square. Square यहाँ पे चौराहा।
and never seems to think of lunch. और वो खड़ा रहता है जब से वो मार्केट में आता है और जब तक उसका जो है बैलून बिक नहीं जाता, उसको अपने आप में ये भी नहीं रहता कि उसे लंच करना है. He never think about to do his lunch. So see the, आपने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जो है मार्केट में बैलून वाला तभी आता है जब मार्केट प्लेस हो, कहीं पे मार्केट लगी हो, और वो हमेशा चौराहे पे खड़ा होता है. क्यों खड़ा होता है? ताकि चौराहे पे खड़े होकर उसको चारों तरफ से बैलून खरीदने वाले बच्चे जो से देख सकते हैं. और दूसरी बात, वो कभी भी अपने आप को लंच करने की भी उसको फुर्सत नहीं होती कि वो लंच तो कर रहे हैं. He never think about to do the lunch. So next paragraph C. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away. Yes, they are. अब उसके पास किस तरह के, इस पैराग्राफ में poet wants to tell you about the qualities and types of balloons. उसके पास पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर यानी कि अलग अलग रंग के जो है बैलून्स हैं, और वो अक्सर जो है सनी डेज यानी कि जब जो है दिन बहुत गर्म होता है उन दिनों में आपको वो दिखाई देता है. और द कार्स एंड द पीपल गेट बिटवीन, और उस वक्त जब जो है गाड़ियों की भीड़ होती है, एंड यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और उस भीड़ वाले जगह पे भी आपको दूर ही नजर आएगा बैलून वाला, जिसके हाथ में बैलून होंगे वो दूर से यू कैन सी दैम बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई दैम. वो उसके बैलून्स जो है वो हवा में लहराते हुए आपको नजर आएंगे. सो इन दिस पैराग्राफ द पोएट टोल्ड यू अबाउट द कलर एंड टाइप, और वो कैसे वहां पे खड़ा होता है ताकि आप उसको दूर से भी देख सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ and see, some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tum like anything. Yes, see the first line. अब पहले लाइन देखिए कि उनके साइज कैसे हैं बैलून्स के, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. All tied together with a string. String यानी कि वो एक तार के साथ बंधे हुए हैं जिनकी उनकी डिफरेंट जो है साइज है बैलून्स की. और and if there is a wind at all, और ऐसे में अगर हवा का झोंका आ जाए तो what happen? They tum like anything. वो आपस में ऐसे लहराते हुए उनके जो है आपस में हवा से वो लहराते हैं. एंड समटाइम व्हाट हैपेंड, हो सकता है कि वो जो है बैलून मैन की ग्रिप से निकल के इट जस्ट फ्लो अपस्टेयर्स. सो नाउ someday perhaps he will let them go. और जब हवा का झोंका आता है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बैलून मैन के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और बैलून जो है ऊपर चला जाता है. तो कभी कभी लेट देम गो, कभी कभी बैलून मैन क्या करता है, उन बैलून्स को उड़ने देता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा तो नहीं होता. ही जस्ट कांट ट्रैप इट बिकॉज ड्यू टू द विंड इट जस्ट फ्लू अवे. और एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उन गुब्बारों को ऊंचाई तक उड़ता हुआ देख सकते हैं. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम नीचे खड़े होकर उनको जो है ऊपर उड़ता हुआ देख सकते हैं. They would look pretty in the sky, और जैसे रात को तारे चमचमाते हैं उसी तरह से हम उस आसमान में उन बैलून को जो है ऊपर जब देखते हैं तो नीचे से देखते हुए हमें वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते हैं. सो इन दिस स्ट्रक्चर यू जस्ट सी द डायग्राम. इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पे सब बच्चे खड़े हैं एंड दिस इज द पर्सन बैलून मैन. अब देखिए डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज के, और बच्चे जो हैं बैलून मैन से अट्रैक्टिव हैं एंड दे जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ हिम टू जस्ट बाय द बैलून. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट
दिस इज द पोएम रिटन बाय रोज कैल्विन। और इसमें पोएट ने आपको एक बैलून मैन की स्टोरी समझाने की कोशिश की है कि वो कहाँ खड़ा होता है, उसकी लोकेशन क्या है और वो कैसा होता है। वो इतना डेडिकेटेड होता है अपने बैलून्स को बेचने के लिए कि उसके पास लंच करने की भी फुर्सत नहीं होती। नेवर थिंक अबाउट टू डू हिज लंच। वो अपना लंच भी नहीं करना चाहता। नाउ सी द वर्ड ट्रेजर, इट मीन्स वर्ड में। बंच का मतलब होता है क्लस्टर या ग्रुप, यानी कि किसी चीज का झुंड या उसका ग्रुप लेकर के। सनी या फुल ऑफ सनलाइट, यानी कि पूरे दिन का, जब दिन पूरे वर्ड में बंच, क्लस्टर, ग्रुप। बंच यानी कि किसी चीज का गुच्छा। सनी फुल ऑफ सनलाइट, यानी कि दोपहर का समय, दिन का समय। शाइनिंग, ग्लोइंग, यानी कि चमकना। टायर्ड, बाउंड, ज्वाइंट, यानी कि बांधना किसी चीज को। अनस्ट्रिंग का मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि लहराना तार से, जिसे बैलून के लिए यहाँ पे ये सही है। टग का मतलब होता है पुल, खींचना और या लहराना। परहैप्स, प्रोबेबली, शायद। सेलिंग का मतलब होता है यहाँ पे फ्लोटिंग, यानी कि फ्लोटिंग कैसे, हवा से जब बैलून ऊपर लहराता है, जाता है, तो इट जस्ट शोज एज अ फ्लोटिंग एंड मूविंग। वॉच, लुक केयरफुली, ध्यान से किसी चीज को देखना। ब्लो का मतलब होता है अंडर देन। तो इसमें क्या है कि जैसे वो ब्लो, जो आपके बैलून्स हैं वो हवा में कैसे ब्लो कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड प्रिटी, एज यूजुअल यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस। दिस इज ब्यूटीफुल। व्हेन द बैलून समटाइम्स जस्ट मूव लेफ्ट ड्यू टू द wind from the hand of the balloon man, it looks pretty in the sky. So अब इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यूज देखिए। फर्स्ट का देखिए, and in the market square he stays। यहाँ पे क्या आएगा, प्लेस जगह है, एरिया वो जगह क्या है, तो स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉपर प्लेस जो है, हमें ये एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द, हमें अपनी इस पॉइंट के रिगार्डिंग देनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, स्क्वायर। तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा वर्ड आएगा, स्क्वायर ही स्टेज, यानी कि चौराहा, मार्केट स्क्वायर के। सी द सेकंड वन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। शाइनिंग यानी कि चमकना, फ्लोटिंग लहराना, तैरना, और गोइंग जाना। तो यहाँ पे ना तो फ्लोटिंग आएगा ना ही गोइंग आएगा, तो शाइनिंग जो है, यू सी देम शाइनिंग फार अवे, आप उन्हें ऊपर चमकता हुआ देख सकते हैं। सो द राइट वर्ड इज शाइनिंग। नाउ सी द सी 3, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, यानी कि फ्लाइंग, उड़ना होगा। सेलिंग का मतलब होता है, ये भी एक तरह से उड़ना है, लेकिन ये जो है वर्ड जो है परफेक्ट किसके लिए यूज हुआ है, बैलेंस के लिए, कि जो है सेलिंग हाई, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मूविंग भी आपका यहाँ पे वर्ड सही नहीं है, और फ्लाइंग भी आपका वर्ड सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक्यूरेट वर्ड सेलिंग हाई आएगा। सो स्टूडेंट, ना आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही करना है। यू हैव टू जस्ट write it down in your notebook and learn this word meaning. And once again, as usual, I would like to repeat my words. So student, you have to watch the video once, twice and thrice, and then you will completely understand what I want to tell you in this video. So student, आप इस वीडियो को